A very good morning to each and everyone present here. Lisha Roy this side once again with the topic of swine flu. So before starting the swine flu, I want to discuss with you. Do you remember the period when we are into your swine flu region, just like your corona? Nowadays, the corona is a pandemic. Okay, but we also face the time when the swine flu is an epidemic. Okay, and if you remember that time, then we can correlate the swine flu with the your corona. Okay, because the prevention of both is similar. The disease is not similar, but the prevention of both is the similar. So let's start with the swine flu. What is swine flu? Swine flu is a respiratory disease of pig. The host is not directly your human. First it comes from pig. Okay, so it's a respiratory disease of your pig. It takes place mainly in that person who eat porks, but it as it is a virus, and it is an it can spread by droplet, so it can spread in any way, right? By your droplets, by your sneezing, by your coughing. How means what virus it causes? It causes by influenza A. Okay, it causes by influenza A. Other viruses are Orthomyxoviridae family, ssRNA. It is spherical in shape and 80 to 120 nm is the size. Again I repeat, what is swine flu? The swine flu is the respiratory disease of your pig. It caused by influenza A. The viruses are Orthomyxoviridae family. It is having ssRNA. It is spherical in shape and it is 80 to 120 nm in size. It is 80 to 120 nm in size. Okay. So what are the other things we have to know? The other things we have to know is how it is spread. First we have studied that what is swine flu. तो swine flu क्या होता है? एक respiratory disease होता है pig में. ये Orthomyxoviridae family का होता है, ssRNA का होता है. इतना हम लोग को पता चल गया, ठीक है. Now come to your next point कि ये host किस किस में होता है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि pig में तो directly ये host, pig में तो ये direct host करता है, human में ये pig से आता है, ठीक है. तो the first host is your pig. Second is your all young. Third is your old. It is more than 65 years of age. It is more than 65 years of age. And other than that, it also comes into your immunocompromised. It also comes into your immunocompromised. तो इसीलिए मैंने आपको लेक्चर शुरू होने से पहले ही बताया था, स्वाइन फ्लू पढ़ते टाइम कोरोना को आप दिमाग में रखिए तो आपको एकदम परफेक्टली याद होगा. ये सारे के सारे होस्ट हम लोग के, पिग को छोड़कर ये सारे के सारे होस्ट हम लोग के किस में होता है? कोरोना में भी होता है, यंग में ही होता है, बूढ़ों में ही होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में ही होता है. ओके, नाउ कम टू योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, now come to your mode of transmission. What is the mode of transmission of this? First I just give an example. देखो, जैसे पिग में मेरे पास ऐसे 5, ये मान लो कि पिग का वायरस है, ठीक है. ये मान लो कि बर्ड्स का वायरस है, ठीक है. पिग मरा तो उससे क्या हुआ? उससे ये बर्ड्स में हुआ. और ये क्या हुआ? हम लोग को बर्ड्स में हुआ, ठीक है. तो ह्यूमंस में हम लोग को कैसे आएगा? ह्यूमंस में हम लोग को ऐसे आएगा. तो ये हो जाएगा मेरा ह्यूमंस में. तो ये हो जाएगा मेरा ह्यूमंस में. ओके, नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ठीक है. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है? डायरेक्ट ईयरबोन से ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है. ये हवा में फैलता है, ठीक है. हवा में फैलता है मतलब जैसे मान लो कि अगर किसी को अगर स्वाइन फ्लू है, वो छींकता है, वो अगर कुछ भी अगर मतलब कि विदाउट एनी प्रोटेक्शन चलता है एनवायरनमेंट में, तो उसके बोलने से, उसके खाने से, उसके ड्रॉपलेट से, उसके योर नेजल योर फ्लूइड से, उन सब से ये हम लोगों का डायरेक्ट ईयरबोन हम लोग को होता है. अदर देन दैट इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 14 डेज का. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 1 to 14 डेज का. अदर देन दैट पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने दिनों तक ये फैला सकता है? तो द पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन
पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया है एक मेरा एडल्ट में होता है आपका 13 to 14 वीक तक, और हम लोग का चाइल्ड में जो होता है वो होता है हम लोग का 4 मंथ्स तक, ठीक है। तो जो चाइल्ड में जो होता है वो होता है मेरा 4 मंथ्स तक। अब आ जाता है हम लोग का इसमें क्लिनिकल फीचर्स में। मेडिसिन इज ऑल अबाउट योर क्लिनिकल फीचर्स एंड द मेडिसिन वी आर गिविंग, राइट। पर मेडिसिन तो हम लोग तब दे सकते हैं ना जब हम लोग इसका इटियोलॉजी और इसका होस्ट है सब कुछ पता होगा, राइट। तो अब आते हैं हम लोगों का क्लिनिकल फीचर्स में। क्या होता है इसका क्लिनिकल फीचर? सडन रैपिड ऑनसेट, पहला, इट इज सडन रैपिड ऑनसेट फीवर, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम हम लोगों का यही होता है। मैं आपको डेज वाइज भी इसका सिम्टम बता दूंगी और सिम्टम के हिसाब से हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हम लोग का सडन रैपिड ऑनसेट फीवर। सेकेंड होता है हम लोग का फीवर चिल्स बॉडी, फीवर चिल्स योर सोर थ्रोट, ठीक है। नाउ कम टू योर थर्ड पार्ट, दैट इज योर नॉन प्रोडक्टिव कफ। Non means your dry cough, non-productive cough. Then fourth is your runny nose. Okay. And the fifth is your GI symptom, muscle inflammation. There are GI symptoms as well as your muscle inflammation. So this is the part we have to रिमेंबर एज योर क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले क्या होता है? सडन ऑनसेट फीवर चिल्स एंड सोर थ्रोट, योर नॉन प्रोडक्टिव कफ, योर रनी नोज एंड योर मसल इन्फ्लेमेशन। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। ऑन दिस बेसिस ओनली वी कैन गिव योर your medicine and all. Okay, so now comes into the features and management. Okay, see, as I have told you that I have divided the swine flu into 3 parts, ठीक है। I have divided the swine flu into 3 parts। देखो क्या इंपॉर्टेंस है इसका। स्वाइन फ्लू तो किसी को भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना हो रहा है, ठीक है, पर उसको कुछ डिफरेंशिएशन होगा ना। हर किसी को तो हम लोग हाई डोज का दवाई नहीं दे सकते ना कि स्वाइन फ्लू हुआ तो दवाई दो। कुछ को हम लोग आइसोलेट करके भी ठीक कर सकते हैं, कुछ को हम लोग कुछ दिन क्वारंटीन करके या फिर कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ देके भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो कैसे भी हम इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, राइट। स्वाइन फ्लू में भी यही चीज है। स्वाइन फ्लू को मैंने ABC के कैटेगरी में मैंने उसको डिवाइड किया है, ठीक है, A, B एंड C। ए में क्या होता है? देयर इज अ माइल्ड फीवर, हर चीज इसमें माइल्ड होगा। माइल्ड फीवर होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, बॉडी एक होगा। तो माइल्ड कफ, फीवर, योर बॉडी एक, सोर थ्रोट, ठीक है। तो ये सब हम हर चीज इसका माइल्ड होगा, ठीक है। हेडेक, डायरिया और वोमिटिंग भी होगा। हेडेक, डायरिया और वोमिटिंग भी होगा, ठीक है। तो ऐसे सिम्टम लेके मेरे पास एक आदमी आता है तो, और स्वाइन फ्लू हम लोग को ऑलरेडी एपिडेमिक है, तो मुझे क्या लगेगा कि भाई ये माइल्ड है, इतना ज्यादा इसका फीवर नहीं है। हर किसी को हम लोग ड्रग्स नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है आप उसको कैसे हाई डोज का ड्रग्स दे सकते हो। अगर वो चाइल्ड में हो रहा है कैसे आप उसको हाई डोज का ड्रग दे सकते हो। और जितना हम लोग प्रिवेंटिव और हम लोग सिम्टोमेटिक अगर ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला हम लोग का ये हो गया। तो हम लोग इसमें मैनेजमेंट क्या होगा? इसमें हम लोगों को स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉट इतना इकोनॉमिकल नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहला चीज तो है हम लोग को टेस्ट करने का जरूरत नहीं है कि इसको स्वाइन फ्लू है कि नहीं। और सेकेंड थिंग क्या है, हम लोग इसको मॉनिटर करते रहेंगे, पर कोई ड्रग्स नहीं देंगे, मैं आपको इसके ड्रग्स का नाम पहले ही बता देती हूँ। ऑस्टियोमिलाविर, इसमें हम लोग इसको ड्रग्स को देते हैं, ठीक है, पर हम लोग इस टाइम इसको ड्रग्स नहीं देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बी में। बी में क्या होता है? कैटेगरी ए का तो सारा फीचर होता ही होता है, प्लस हम लोग का इसमें क्या होता है? सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन। यह होता है हम लोग का सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन होता है,
ठीक है। और ये मेनली हम लोगों को ना प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, ये मेनली हम लोग का किस में दिखाई देता है, हम लोग को प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। और या फिर हम लोगों को प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हम लोग को किस में दिखाई देता है, हम लोग को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हम लोग भी कोई भी टेस्ट नहीं करते हैं, बस हम लोग ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, बस हम लोग इसमें ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कोई टेस्ट नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग का थर्ड में सारे सिम्टम तो होते ही हैं, बट ये हम लोग का सीवियर फॉर्म्स में होता है। एज वेल एज हम लोगों को इसमें क्या होता है, ड्रॉजीनेस, योर साइनोसिस, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या होता है, ड्रॉजीनेस होता है, साइनोसिस होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है, और हेमोप्टाइसिस होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हम लोग का इसमें दिखता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या टेस्टिंग है, हम लोग इसमें इमीडिएट हम लोग का इसमें क्या होता है, टेस्टिंग तो छोड़ ही दो, टेस्टिंग तो होगा ही होगा, प्लस हम लोग का इसमें क्या होगा, हम लोग का इसमें इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और हम लोग क्या देंगे इसमें मेडिकेशन, मेडिकेशन। तो ये है हम लोगों का फीचर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर माइल्ड फीवर है, हम लोग को माइल्ड कफ है, रनी नोज है, ड्राई कफ है, पर सब कुछ माइल्ड है, ठीक है, और हम लोग को डायरिया वोमिटिंग भी है, तो हम लोग को टेस्ट करने का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एपिडेमिक है ना, तो एपिडेमिक में माइल्ड सिम्टम हम लोग का आ रहा है, ए में है, तो हम लोग उसमें ऑस्टियोमेलाविर भी नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग उसको आइसोलेट करके रखेंगे और उसको मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। और अगर हो सकता है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग उसको दवाई देते रहेंगे। सेकेंड में क्या है, कैटेगरी ए तो है ही है, पर ये सारा हम लोग को थोड़ा सा सीवियर है, एज वेल एज ये हम लोग को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और प्रेगनेंसी में अगर ये यही माइल्ड सिम्टम्स अगर हो गया तो फिर हम लोग को ब्लड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना है। और हम लोग का थर्ड में क्या है, सब कुछ हम लोग का सीवियर है, इवन हाइपोटेंशन, हेमोप्टाइसिस, योर साइनोसिस, सब कुछ है, तो टेस्ट तो करना ही करना है, प्लस हम लोग इसमें हम लोग को हॉस्पिटलाइजेशन करना है, ठीक है। नाउ कम टू हियर द ट्रीटमेंट। सबसे पहले ट्रीटमेंट में मैंने इसको फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको किसके साथ कंपैरिजन किया था, कोरोना के साथ कंपैरिजन किया था। तो कोरोना का भी सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ओवर इट। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोगों का प्रिवेंशन ही है। ट्रीटमेंट क्या है हम लोगों का, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन है। इसका वैक्सीनेशन भी निकल गया है, तो सबसे पहले है हम लोग का प्रिवेंशन। प्लस अब हम लोग इसमें कौन कौन सा ड्रग देंगे, ठीक है। ड्रग देने से पहले ये आप याद रखना, स्वाइन फ्लू के सारे ड्रग्स 5 to 7 डेज के लिए ही होते हैं, जब तक ये माइल्ड सिम्टम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑस्टेलमाविर बीडी देते हैं 5 डेज के लिए, पहला ड्रग, ठीक है। सेकेंड ड्रग है हम लोगों का ज़ैनामेविर। थर्ड ड्रग है हम लोगों का परमेविर। ये सब कुछ हम लोग बीडी इंटू 5 डेज के हिसाब से देते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हम लोग का होता है M2 इनहिबिटर्स, और हम लोग क्या देते हैं इसमें, M2 इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग पूछेंगे कि M2 इनहिबिटर्स का 2 एग्जांपल बताओ, तो एमेटाडीन एंड रिमेटाडीन, ठीक है। तो एमेटाडीन एंड रिमेटाडीन, okay. So this is the feature you have to go through with the prevention: oseltamivir, zanamivir, peramivir and M2 inhibitors. These are the things we have to give. Other than that, we can give your supportive therapy like your IV fluids, your antibiotics, as well as you can also give them a home isolation, low dose corticosteroid, hydrocortisone. These are all your supportive therapy. So here I end the swine flu. My next topic will be on herpes 1 and 2 and the differentiation between it. Stay tuned.